Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Pakistan Studies for grade 10. Today is our 5th online lecture and it covers the following topics. Pakistan as a nuclear power and the causes of the military takeover of 12th October 1999. Aziz Talibat, now let's start our topic, which is Pakistan as a nuclear power. When Zulfikar Ali Bhutto took over powers in 1971, he declared that the atomic energy is necessary for our progress and defense. But we want atomic energy not for war or destruction, but for our prosperity and development. The first atomic plant of Pakistan was set up in Karachi in 1992, but it was not fulfilling the country's need. For the development of the growing industries in Pakistan, it was very essential to obtain more atomic energy. जब 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने कहा कि एटमी साइंस जो है वो हमारी तरक्की और दिफा के लिए निहायत ज़रूरी है, मगर हम एटमी तवानाई की ख्वाहिश जंग या तबाही के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए करना चाहते हैं। 1972 में फिर कराची में पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर कायम किया गया, मगर ये मुल्क की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में बढ़ती हुई सनतों की तरक्की के लिए मजीद एटमी तवानाई का हसूल निहायत ज़रूरी था। Now student, when India did its first atomic blast in Rajasthan desert in 1974, it became an atomic power. With this blast, the balance of power in South Asia was disturbed. Therefore, Pakistan had to make its effort to become an atomic power. Zulfikar Ali Bhutto wished to obtain an atomic reprocessing plant from France. An agreement was signed between the two countries for a plant in 1976. Out of the total cost of $40 crore for the plant, the first installment of $10 crore was paid, but India, Russia, America and other atomic power did not appreciate this. They pressurized France, to which France refused to provide the plant to Pakistan. अजीज तालिबात, जब भारत ने 1974 में राजस्थान के सहरा में अपना पहला एटमी धमाका किया तो वो एटमी ताकत रखने वाला पहला मुल्क बन गया। भारत के एटमी धमाके से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न बिगड़ गया। चुनाचा पाकिस्तान ने भी एटमी ताकत बनने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के हसूल की ख्वाहिश की और 1976 में दोनों ममालिक में प्लांट की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। फिर क्या हुआ कि प्लांट की कुल कीमत $40 करोड़ में से $10 करोड़ की रकम की पहली किस्त के तौर पर अदा कर दी गई, लेकिन भारत, रूस, अमेरिका और दूसरी एटमी ताकतों को ये बात हरगिज पसंद न आई। चुनाचा उन्होंने फ्रांस पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान को ये प्लांट मुहैया ना करें और मजबूरन फ्रांस ने मुआहदे के बावजूद प्लांट की फराहमी रोक दी। France refused to provide the plant to Pakistan. General Ziaul Haq's government continued this program under Dr. Abdul Qadir Khan's supervision. He announced that Pakistan had obtained the technique of uranium enrichment in 1984. On this announcement, the enemies of Pakistan, like India, started their propaganda movement against Pakistan nuclear program. It was blamed that Pakistan could use the atomic weapon through American F-16 and French
joint aircraft Mirage, which had access to big cities of India. Dr. Qadir Khan claimed in 89 that Pakistan had gained the capability to build an atomic bomb or device. जब इसका ऐलान किया गया तो पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा की मुहिम तेज कर दी और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि अमरीकी F-16 और फ्रांसीसी तैयारे जो कि महराज के नाम से थे के जरिए अपने एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है जो भारत के बड़े शहरों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। 1989 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। India and Pakistan had kept their programs secret from each other, but with its atomic blast in 1974, it was exposed to the world that India was an atomic power. America was completely silent, but when Pakistan proceeded in this field, the Pressler Amendment was enforced rapidly. इंडिया और पाकिस्तान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को एक दूसरे से पोशीदा रखा, खुफिया रखा, मगर भारत ने 74 में जब धमाका किया और दुनिया को बता दिया कि वो एक एटमी कुव्वत है, अमेरिका ने उसके इस रवैये से नजरें चुरा ली, मगर जब पाकिस्तान ने इस मैदान में कदम रखा तो उसे प्रेसलर तरमीम की पाबंदियों में जकड़ दिया गया। Dear student, when the Bharatiya Janata Party BJP came to power in India in 1998, it conducted 5 atomic blasts in Pokhran, Rajasthan on 11th May 1998 to establish its atomic supremacy in the region. President Bill Clinton forced Mia Nawaz Sharif not to reply the Indian aggression and threatened to curtail economic aid to Pakistan if it conducted blast in return. But Mia Mohammad Nawaz Sharif refused to accept Bill Clinton's threat. जब 1998 में भारत में भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी कहा जाता है बरसरे इक़्तिदार आई तो इसने भारत की बर्तरी का सिक्का जमाने के लिए 11 मई 1998 को पोखरान राजस्थान का इलाका उसमें 5 एटमी धमाके करके खित्ते में अपनी एटमी बर्तरी कायम करने की कोशिश की। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को भारतीय जारहियत का जवाब देने से मना कर दिया और फिर धमकी भी दी कि अगर पाकिस्तान ने जवाबी धमाके किए तो उसकी इक्तसादी इमदाद बंद कर दी जाएगी। मगर वजीर आजम नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। In spite of international pressure and the government demonstrated courage on the demand of the public and conducted 7 blasts in Chaghe Hill of Balochistan in reply to 5 blasts of India. Pakistan became the world's 7th and the Islamic world's first atomic power. As soon as Allahu Akbar sounded over the Chaghe Hill, the Pakistani nation was excited with pride and the enemy's arrogance dashed to the ground. 28 May was declared Yawm-e-Takbir. The nation celebrates this day with full honor and enthusiasm every year. अजीज तालिबात, जैसे ही आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने अवाम के मुतालबे पर इखलाकी जुर्रत और कौमी गैरत का मुजाहरा करते हुए 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चागी पहाड़ में भारत के 5 धमाकों के जवाब में 7 धमाके किए। इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया। जो ही चागी के पहाड़ों में अल्लाहु अकबर का नारा गूंजा,
पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया और दुश्मन का गरूर खाक में मिल गया। 28 मई को यौम तकबीर का नाम भी दिया जाता है और कौम हर साल ये दिन पूरे वकार और जोशो खरोश के साथ मनाती है। डियर स्टूडेंट, ये चागी हिल जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है उसकी तस्वीर है और यहाँ पाकिस्तान ने कामयाब 7 एटमी धमाके किए थे। The next topic is the causes of the military takeover of 12th October 1999. The first point is on 12th October 1999, the Chief of Army Staff General Pervez Musharraf suspended the Constitution, overthrew the government of Prime Minister Mian Mohammad Nawaz Sharif, and dissolved the National and the Provincial Assemblies. The Prime Minister Mian Mohammad Nawaz Sharif's decision of appointing General Ziauddin Chief of Army Staff was also declared unconstitutional. 12 अक्टूबर 1999 के फौजी कब्जे की वजूहात। 1999 को 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आइन को मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कौमी और सूबाई असम्बलियां भी मुअत्तल कर दी, जबकि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का जनरल जियाउद्दीन को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद करने के फैसले को भी गैर आईनी करार दे दिया गया। Now the second point is later on Supreme Court in a decision gave General Pervez Musharraf's government a period of 3 years so he could bring constitutional and social reforms in the country. Now the next topic is the system of devolution of powers initiated by Pervez Musharraf with particular emphasis on local self-government. Local government, this is a short question and important short question. What is meant by the local government? A government by the local people who formulated and implement domestic policies at the local level is called the local self-government. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को 3 साल का अरसा दे दिया ताकि वो आईनी और माशरती इस्लाहात लाएं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है परवेज मुशर्रफ के दौर में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली और मुकामी हुकूमत। अब मुकामी हुकूमत से क्या मुराद है? मुकामी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर मुकामी लोगों के हाथ में हो और मुकामी लोग उसका इंतजाम चलाएं, वो मुकामी हुकूमत कहलाती है। मुकामी लोग ही मुकामी सतह की पॉलिसीज मुरतब करते हैं, मंसूबे बनाते हैं और फिर उनको अमली जामा पहनाते हैं। Historical background. The following is the historical background of the system of the local government in Pakistan. Viceroy Lord Ripon system of local government. Viceroy Lord Ripon enforced the local government system through an act in 1884 in South Asia and established local boards at district and tehsil levels. Their responsibility was to solve the problems of local people, but these institutions failed to solve the problems because they had neither the powers nor the financial resources. अब अगर लोकल गवर्नमेंट के तारीखी पस मंज़र पर नज़र डालें तो पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों के निज़ाम का तारीखी पस मंज़र का जायज़ा लेते हैं कि वो क्या है। वायसराय लॉर्ड रिपन का मुकामी हुकूमतों का निज़ाम 1884 में जनूबी एशिया में वायसराय लॉर्ड रिपन ने एक एक्ट के जरिए मुकामी हुकूमत का निज़ाम नाफिज किया। बरे-सग़ीर पाक व हिंद पर अंग्रेज जो कि बैरूनी ममालिक से आए हुए थे, उन्होंने हुक्मरानी की
उनको मुकामी लोगों का ताउन जरूरी चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने मुकामी हुकूमत का निज़ाम नाफिज किया और इसमें जिले और तहसील की सतह पर मुकामी बोर्ड कायम किए। इनके जरिए मुकामी लोगों के मसाइल हल करना उनका मकसद था, लेकिन ये इदारे लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रहे, क्योंकि उनके पास ना तो इख्तियारात थे और ना ही वसाइल थे। President Ayub Khan's basic democracy system. President Ayub Khan issued an order for basic democracies on 27 October 1959, which introduced a system of local government in Pakistan. It was called Basic Democracy System. Its main aim was to transfer the power at the lower level through their own representatives. This system could not bring any substantial changes and came to an end, and the system of local government was not even successful in the Bhutto time period. सदर अयूब खान का बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको आपने याद करना है, समझना है। अगर समझ नहीं आएगा तो आप इंटरेक्शन टाइम में इसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सदर अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम का हुक्मनामा 27 अक्टूबर 1959 को जारी किया और इसके मुताबिक पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों का एक निज़ाम लागू किया गया, जिसे बुनियादी जमहूरियत का नाम दिया गया। इसका अहम मकसद ये था कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और फिर अवाम के मसाइल का हल बुनियादी सतह पर इनके अपने नुमाइंदगान के जरिए किया जाए। ये निज़ाम अगरचा कोई खातिर ख्वाह तब्दीली तो ना ला सका, लिहाजा हुकूमत की तब्दीली के साथ ही ये निज़ाम भी खत्म हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कामयाब ना हो सका और उसे ना चलाया जा सका। The last heading is General Ziaul Haq's local government system. When Ziaul Haq came to power, the local government system was enforced again, and the elections of local government were conducted twice. This system was established on a firm basis and it kept on progressing step by step, but the majority of the people could not get reasonable benefit from this system. अब ज़ियाउल हक के दौर में मुकामी हुकूमतों का निज़ाम जो राइज किया गया, वो ज़ियाउल हक के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को दोबारा नाफिज किया गया और इस तरह मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात 2 दफ़ा कराए गए। ये निज़ाम मजबूत बुनियादों पर कायम किया गया था और मरहलावार तरक्की करता रहा, मगर अवाम की अक्सरियत को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल ना हो सका। ओके नाउ डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर जो कि 5th ऑनलाइन लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको 1, 2, 3 कई दफ़ा सुने, जहन नशीन करें, याद करें, समझें। अगर इसके बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे इंटरेक्शन टाइम में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करें, बहुत पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।